In this class, we will study the unit third, that is enzymes. So, what is the definition of enzymes? The enzymes are the biomolecules. Those molecules which are present in the body of the living organism are called as biomolecules. So, the enzymes are biomolecules which are made up of proteins. All the enzymes are made up of proteins. The enzymes increase or decrease the rate of a chemical reactions. Rate of a biochemical reaction. Biochemical reactions means those chemical reactions which takes place in the body of living organism, which increase or decrease the rate. Rate means speed. So enzymes increase or decrease the speed of a biochemical reaction or a chemical reaction in the body of the living organisms. The terms enzyme means in yeast. What is yeast? Yeast is a fungus. So the chemical substance which are present in the body of the fungus yeast are called as enzymes according to the local definition. The first enzyme was discovered in 1833 by Esselmy Payne, and the enzymes which was discovered in the very first was diastase enzyme. In 1877, Wilhelm Kuhne coined the term enzyme. In 1926, J.B. Summer isolated the first enzyme. Isolated means separated the first enzyme. और ये एंजाइम कौन सा था? This enzyme was urease, that is which attack on the urea. Now the question arises, all the enzymes are proteins, but all the proteins are not enzymes. मतलब जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीन होते हैं, लेकिन जितने भी प्रोटीन हैं वो सारी की सारी एंजाइम्स नहीं होती हैं. ऐसा क्यों होता है? We know that the structure of all the enzymes are made up of proteins, and these protein when increase or decrease the speed of a chemical reaction called as the enzymes. The structure of the enzymes is made up of protein, and when these protein starts to increase or decrease the rate of a chemical reaction, these proteins are regarded as enzymes. But all the proteins are not increase or decrease the rate of a chemical reaction. That's why we cannot say that all the proteins are enzymes. Next one is the nomenclature of the enzymes. Nomenclature means to give the name. Of an enzymes. The nomenclature of the enzymes can be done by many types. So number one, on the basis of the substrate. Number two is on the basis of the chemical reaction. Which type of the chemical reaction that an enzyme perform. Third one is on the basis of the activity of the enzyme. Which kind of the activity that an enzyme perform. Fourth one is on the basis of the origin, from where the enzyme is originated, and on the basis of the local nomenclature. So first one is on the basis of the substrate. ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट में हम क्या करते हैं, जो भी सबस्ट्रेट का नाम होगा जिसके ऊपर कोई एंजाइम एक्ट करता है उस सबस्ट्रेट के नाम के पीछे एज लगा देते हैं हम. जैसे अगर कोई एंजाइम यूरिया को तोड़ता है, यूरिया को ब्रेक डाउन करता है, जैसे CO2 और NH3 में तोड़ता है, सो इस एंजाइम को क्या करेंगे, इसमें सबस्ट्रेट क्या हो गया, ये पहले वाला सबस्ट्रेट होता है हमेशा. इस सबस्ट्रेट पर एंजाइम ने काम किया तो सबस्ट्रेट का नाम क्या है, यूरिया. तो कहता है कि जो भी सबस्ट्रेट का नाम है उसके पीछे ASE जोड़ देंगे तो एंजाइम का नाम क्या हो गया, यूरिएज. जैसे सेकंड एग्जांपल हम लें तो सपोज टू भी हमारा जो सबस्ट्रेट है वो अर्जिनिन है. अर्जिनिन अमीनो एसिड है. तो जो एंजाइम अमीनो एसिड अर्जिनिन क्या हो गया इस केस में, सबस्ट्रेट. तो जो एंजाइम अर्जिनिन को तोड़ेगा या अर्जिनिन के ऊपर काम करेगा उस एंजाइम्स का नाम हो जाएगा अर्जिनेज एंजाइम. इसी तरह से सपोज टू भी हमारे पास नंबर 3 पे यूरिक एसिड बॉडी में है, यूरिक एसिड को तोड़ने वाला कोई एंजाइम है तो इसमें इस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड पे काम करता है, दैट इज़ यूरिक. और लास्ट में क्या लगा देंगे, एज. जो ये लास्ट में हम ऐड करते हैं इसको सफिक्स कहा जाता है. जो भी चीज़ लास्ट में ऐड होती है उसको सफिक्स कहते हैं.
तो ये कहता है कि एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पे काम करता है उस सबस्ट्रेट का नाम लिख के और सबस्ट्रेट के पीछे हम एज लिख देंगे. सो ऑन दिस बेसिस वी कैन can give the nomenclature of an enzyme on the basis of the name of the substrate. So second one is the on the basis of the chemical nature, chemical reaction. किस तरह की केमिकल रिएक्शन कोई एंजाइम शो करता है उसके बेसिस पर भी हम उस एंजाइम का नाम रख सकते हैं. सपोज टू बी एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज जो हैं, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो हैं, ये एंजाइम किस चीज़ में हेल्प करते हैं? डीहाइड्रोजन, डी का मतलब है रिमूवल, हाइड्रोजन का मतलब है H2. तो ये किस में हेल्प करेंगे? ये एंजाइम सबस्ट्रेट से रिमूवल ऑफ H2 करेंगे. तो इन एंजाइम को हम नाम देंगे डीहाइड्रोजिनेज. इसके बाद ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो उनको हम क्या कह देंगे? ऑक्सीडेज एंजाइम. ऑक्सीडेशन विच डू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसको हम ऑक्सीडेज एंजाइम बोल देंगे. ऐसे एंजाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूवल में हेल्प करते हैं उनको हम डी कार्बोक्सीलेज एंजाइम कह देते हैं. डी का मतलब है रिमूवल और कार्बोक्सी का मतलब है यहाँ पर CO2 गैस. तो ये एंजाइम किस में हेल्प करते हैं? दैट इज रिमूवल ऑफ CO2 में. फोर्थ वन दैट इज प्रोटीनेज एंजाइम हो गए. प्रोटीनेज एंजाइम नाम में लिखा है जो एंजाइम प्रोटीन पे काम करते हैं, एक्ट ऑन प्रोटीन. और प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड है? दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड. सो जो एंजाइम पेप्टाइड बॉन्ड पे जाके एक्ट करते हैं या फिर प्रोटीन पे काम करते हैं उनको प्रोटीनेज कह सकते हैं. ऐसे एंजाइम जो लिपिड पे एक्ट करते हैं उन एंजाइम को हम लाइपेज भी कह सकते हैं, विच एक्ट ऑन लिपिड्स, उनको लाइपेज कह सकते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल रिएक्शन वी कैन गिव द नेम टू एन एंजाइम. ऑन द बेसिस ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी. एंजाइम एक्टिविटी का मतलब है कि एंजाइम सबस्ट्रेट को तोड़ता है या फिर उस सबस्ट्रेट को जोड़ता है, इसको हम कहेंगे एंजाइम एक्टिविटी. अगर कोई एंजाइम सबस्ट्रेट का ब्रेक डाउन करता है तो ऐसे एंजाइम के पीछे हम सफिक्स के तौर पर लिख देते हैं, दैट इज लिटिक एंजाइम, LYTIC, लिटिक एंजाइम. और ऐसा एंजाइम जो किसी चीज़ को जोड़ता है, विच हेल्प्स इन द सिंथेसिस करता है, ऐसे एंजाइम्स को हम लीगेज एंजाइम भी कह देते हैं या फिर ऐसे एंजाइम को हम सिंथेटेज एंजाइम भी कह देते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक, देखिए इसके पीछे लिटिक जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है ये क्या करेगा? ये स्प्लिट कर देगा, तोड़ देगा, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन की स्प्लिटिंग कर देगा, प्रोटीन को तोड़ देगा. उसके बाद इसमें एग्जाम्पल है दैट इज लाइपोलिटिक. लाइपोलिटिक में देखिए लास्ट में लिटिक है और लाइपो का मतलब है लिपिड. सो ऐसा एंजाइम्स जो लिपिड स्प्लिटिंग ऑफ लिपिड करेगा उसको हम कहेंगे लाइपोलिटिक. सो ये एंजाइम ऐसे हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं. लिगेज की अगर हम बात करें तो इनको सिंथेटेज भी कहा जाता है. जैसे इनका एग्जाम्पल होगा एक ग्लूटामिक सिंथेटेज. ग्लूटामिक सिंथेटेज क्या करेगा? ग्लूटामिक एसिड से या कहें कि ग्लूटामिक एसिड से ये एंजाइम्स क्या करेगा? ग्लूटामीन बना देगा और CN बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है. ये आगे हम स्टडी करेंगे इसको डिटेल में. फोर्थ वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब है कि एंजाइम्स जो है वो हमें कहाँ से मिले हैं. मीन्स ये हमें फ्रूट्स में मिलते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लांट्स में मिलते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ही मिलते हैं. सो ये मिलते कहाँ से हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से है. सो ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन वी कैन ऑल्सो गिव द नेम टू एन एंजाइम्स. एग्जाम्पल के केस में लाइक एज papain, this enzyme is present in papaya. The another example is that is ficin. Second example is ficin. This enzyme is present in ficus. Third one is the lactobacillus, that is substilicin. This enzyme is obtained from bacillus, that is BACILLUS, bacillus
subtilis. It is a bacteria. So this enzyme is present in this, especially in this bacteria. This ficin is present only in the ficus. The papain is only present in the papaya. So in which species they are present, or from where they are produced, so what is their origin. On this basis we can classify the enzymes and can also give to their name. कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज नहीं किया है, लोकल एरिया में इनको जिन नाम से पुकारते थे उन्हीं नाम को यूं का यूं यूज़ किया गया है। जैसे टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम का सही नाम तो सैलवरी अमाइलेज होता है, लेकिन इसको लोकल भाषा में वहाँ के लोग टाइलिन बोलते थे। सो इस एंजाइम को यूं का यूं टाइलिन के नाम से ही पढ़ा जाता है, सैलवरी अमाइलेज भी बोला जाता है। इसी तरह से पेप्सिन, रेनिन, RENNIN, रेनिन, ट्रिप्सिन, ये कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो आज भी उनके लोकल नेम के हिसाब से ही यूज़ किए जाते हैं।